خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ میں تھوڑی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ میرا نام پیسٹر جارج وحید ہے اور آپ نے لیٹس لرن منسٹریز انٹرنیشنل کو ٹیون کیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے جو ایشیائی ممالک ہیں ان میں صبح کا وقت ہے اور اتوار کا دن اور صبح کے تقریباً 8 بجے کا وقت۔ اس وقت امریکہ میں ہفتے کا دن ہے اور رات کے 10 بجے کا وقت ہے۔ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم مل کر اس کے زندہ کلام کو کھولیں۔ میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر اور کوئی مہربانی اور فضل اور رحمت نہیں کہ خداوند نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے اور آپ کو موقع بخشا ہے کہ اس کے قدموں میں آ کر مل کر سیکھیں۔ لیٹس لرن منسٹریز اور نیو کووننٹ چرچ آپ سب کی دعاؤں، آپ کی جو سپورٹ ہے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور فردر تاخیر نہ ہو، آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے آج کا جو پیسج ہے، جو حوالہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ آج کا جو کلام ہے یہ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اور اس کے 12ویں باب کی 32ویں آیت جو ہے میں اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ The Gospel of Jesus Christ according to John chapter 12 verses 32۔ خداوند کے زندہ کلام میں میرے عزیزو یوں لکھا ہے، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے لیاقت، ہدایت اور رہنمائی مانگیں تاکہ وہ ہمیں آج کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق بخشے۔ خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے اور خاص کر خداوند اس بڑے فضل کے لیے کہ تو نے ہمیں چنا ہے، اور آئے خداوند اس چناؤ کی وجہ سے ہی اس وقت ہم تیرے قدموں میں آئے ہیں، اور آئے خداوند جب کہ ہم مل کر خداوند تیرے کلام کو کھولتے ہیں تو تیرے کلام کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی لیے خداوند ہمیں پاک روح کی مدد کی ضرورت ہے۔ اے خدا تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ تو جس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہمیں بچایا ہے، سنبھالا ہے، تیرے آگے درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا تیرے کلام کو جب کھولتے ہیں تو میں نہیں بلکہ تو بول اور جملوں کے الفاظ کی ترتیب بخشنا، اور خداوند آج کا کلام، آج کی باتیں، آج کا سبق خداوندہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ پھل رہا ہے۔ یسوع کے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا بڑا شکر ہے میرے عزیزو کہ وہ ہمیں بارہا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس کے کلام میں سے سیکھیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کلام مقدس کو لے لیں، اور جو بہن بھائی یا ایماندار ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ حوالہ بتایا دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ آج کا جو میسج یا ٹاپک ہے میسج کا، وہ آپ کے لیے کچھ اسٹرینج ہوگا، کچھ عجیب ہوگا۔ اسپرچل میگنیٹک فیلڈ، بالکل مختلف ٹاپک ہے، لیکن خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ آج خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ جب ہم اسپرچل میگنیٹک فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اگر میں اسے یوں کہوں اردو میں کہ روحانی مقناطیسی اثار، تو تقریباً ٹرانسلیشن ٹھیک ہے۔ بچپن میں مقناطیس جو ہے یہ مجھے بہت امیز کرتا تھا، اور مجھے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سارے بچوں کو، کیونکہ مقناطیس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، جو پیس ہے لوہے کا، وہ دوسرے جو لوہے کی دھات کی اشیاء ہیں انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ ایک اٹس ونڈرفل امیزنگ کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ خصوصاً جب آپ بچے ہیں تو آپ کے ذہن میں مختلف سوال آتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے
کہ یہ لوہے کا ٹکڑا جو ہے دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں بھی بچپن میں اس بات سے بڑا حیران ہوتا تھا، اور دوسرے بچوں کی طرح ہمیشہ یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ مقناطیس کیسے بنتا ہے، کس طرح وجود میں آتا ہے۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور کے ایک علاقہ میں ہم رہتے تھے، بہت پرانی بات ہے، میاں میر کا علاقہ ہے، تو وہاں جو ریلوے کی ٹریک ہے وہ گزرا کرتی تھی۔ ہم ذرا ہٹ کے تھے، لیکن ریلوے کی جو ٹریک ہے یا جو ریل گاڑی کی وہ جو لائن ہے وہ تھی، اور وہاں سے ٹرین گزرتی تھی، اور ہم چند لڑکے مل کر یہ سوچتے تھے کہ یہ مقناطیس جو ہے کس طرح بنتا ہے۔ اور ہم میں سے ایک جو بڑا تھا اس نے کہا کہ مقناطیس بنانا بڑا آسان کام ہے، آپ ریل گاڑی کی جو لائن ہے اس پر ایک لوہے کے ٹکڑے کو پیس کو آپ رگڑیں گے تو اس کے اندر مقناطیسی قوت جو ہے وہ آ جائے گی، اور پھر آپ اپنا مقناطیس بنا لیں گے۔ تو بچپن کی باتیں ہیں، وہ ایک ایسا وقت یا دور ہوتا ہے جب بہت زیادہ تجربات ایکسپیرینس کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور مجھے بھی ایسی، اور ہم سب چند لڑکے مل کر جو ریل کی پٹری تھی، جب اس پہ ریل گزرتی تھی تو ہم لوہے کے ٹکڑے کو رب کرتے تھے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، مقناطیس بنا نہیں ہے، لیکن اس جستجو میں ہم لگے رہے۔ اور پھر ایک دن کی بات ہے کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ریل گزری اور میں نے آواز سنی، اور میں نے جلدی سے وہ جو لوہے کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا اس کو لیا، اور گھر والوں سے نظریں بچا کر میں جو لائن ہے ریلوے کی وہاں پر گیا، اور میں نے جب ریل گزر گئی تو اس کو لوہے کے ٹکڑے کو ریل کی پٹری پر رگڑنا شروع کیا، اور کافی دیر میں یہ کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر میں واپس گھر کی طرف آیا، اور جب میں گھر آیا تو یہ کوئی جون جولائی کی بات ہے، گرمیوں کا مہینہ تھا، اور آپ کو پتہ ان مہینوں میں یوزلی گھر والے دوپہر کو سو رہے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں باہر نکل سکوں۔ تو میں نے اسے کافی رب کیا اس لوہے کے ٹکڑے کو، لیکن مقناطیس کی جو قوت اور پاور یا جو الیکٹرانز ہیں وہ اس میں نہ آئے، اور لوہے کا ٹکڑا جو تھا وہ بالکل اسی طرح ہی رہا، مقناطیس تو نہ بنا، اور نہ ہی مقناطیس بننے کی وجہ سے کہ دوسری چیزیں اس کی طرف کھینچی آئی۔ لیکن یہ ایک بات ضرور ہوئی کہ جب میں گھر پہنچا تو میرے والد کا جو جوتا تھا وہ میرے بدن کی طرف بہت زیادہ کھینچا گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے تجربات جو ہیں وہ چھوڑ دیے۔ کہانی شیئر کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ میگنیٹ جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہاؤ دیٹ ہیپنس، کہ کس طرح اور کیا اس کے اندر کون سی فورس ہے اس کے اندر جو لوہے کی دھات کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے اندر جو الیکٹرک قوت ہے، جو فورس ہے، وہ کس طرح آتی ہے اور کس طرح وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، مقناطیس جو ہے یا میگنیٹک، اس میں ایک فورس ہے، قوت ہے کہ وہ چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، لوہے کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور بالکل اسی طرح ہی جس طرح جو دھات کی چیزیں ہیں وہ مقناطیس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں، اسی طرح ہماری جو زمین ہے اس میں جو گریوٹی ہے یا کشش شکل جسے بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر ہم چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم دوبارہ نیچے آتے ہیں۔ آپ کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگائے تو آپ نیچے کو آئیں گے، اوپر کو نہیں جائیں گے، کیونکہ زمین کی جو کشش ہے، جو گریوٹی ہے، وہ آپ کو نیچے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور اس کے لیے نیوٹن نے سیب کی جو کہانی ہے اس کے ذریعے اس کلیے کو یا اس فورس کو بیان کیا، اور ہم سب نے اسے اسکول اور کالج کے دنوں میں پڑھا ہے۔ لیکن یہ جو قوت ہے، یہ جو فورس ہے، اس کے اظہار سے اس کا جو پھیلاؤ ہے اس میں سے نکلنے کے لیے جو سائنسدان ہیں ان کو جو راکٹ ہے انہیں سرٹن سپیڈ پر اڑانا پڑتا ہے، اور پھر وہ فورس و طاقت کے ساتھ جو زمین کی گریوٹی ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور سپیس میں داخل ہوتے ہیں۔
अब जमीन की जो ग्रेविटी है फिजिकल, उसका उस रॉकेट पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए कि वो जमीन का जो हिसार है उससे बाहर निकल चुका है। और सिर्फ उसी वक्त ही दोबारा वो ग्रेविटी में आएगा या जमीन उसे अपनी तरफ खींचेगी जब वो रॉकेट दोबारा जमीन के हिसार में दाखिल होगा। तो ये कुव्वत या फोर्स जो है ये अपनी तरफ चीजों को खींचती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मकनातीस जो है लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और जो लोहे की चीजें हैं या कोई भी धात की, जो लोहे की धात की चीजें हैं, वो उसकी तरफ खींची चली जाती है, उसको फॉलो करती हैं। अगर आपको जिधर भी उसको आप मोड़ेंगे उसकी तरफ जाएंगी, उसको फॉलो करेंगे मेरे अजीजों। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आजकल मुख्तलिफ जिस चीजें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं इंसानों को। आज बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, एक्टर्स को फॉलो करते हैं, पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं, बहुत सारे खादम हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, चर्च ग्रुप हैं जिन्हें फॉलो करते हैं लोग, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे जिंदगी से वाबस्ता लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपने सेल फोन का एक बटन दबाते हैं, फॉलो, और उसके साथ वो जिनको भी वो फॉलो करते हैं उनकी जो एक्टिविटीज होती है उसको वो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। फॉलो करना आजकल बहुत आसान काम है। आप एक बटन दबाएं अपने सेल फोन पर तो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में अपने मुनज्जी यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद मैं मरकज की इंजील में रहना चाहता हूं थोड़ी देर। फिर हम जो पैसेज अभी हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा है, फिर हम उसकी तरफ आते हैं। हम जब मरकज की इंजील पढ़ते हैं और लूका और यूहन्ना और मत्ती की, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन मैं मरकज में से चंद हवाले जो हैं, मैं हवाला तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसका रेफरेंस आपको देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग किस तरह यीशु को फॉलो करते थे। उन्होंने भी अपने शायद सेल फोन पे बटन दबाया होगा, फॉलो जीसस। उस जमाने में मेरे अजीजों हम जानते हैं कि सेल फोन नहीं था, आज की तरह नहीं है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक बटन दबाएं तो सारी एक्टिविटी आपको नजर आ जाती है। उस जमाने में फॉलो करने के लिए, यीशु के पीछे जाने के लिए जो लोग थे फिल हकीकत लिटरली सब कुछ छोड़कर उसे फॉलो करते थे। उसमें एक ऐसी कुव्वत थी, उसमें एक ऐसी पावर थी, ऐसी मैग्नेटिक कुव्वत फोर्स थी जिसको लोग फॉलो करते थे, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते थे, लोग जो उसकी तरफ खींचे जाते थे। उसके अंदर एक फोर्स, उसके अंदर एक पावर है मेरे अजीजों। आज भी दुनिया में लोग जो हैं उसकी तरफ खींचे जाते हैं, उसके अंदर जो स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फोर्स है उसकी तरफ लोग जो है खींचे चले जाते हैं। और उस जमाना में मरकज की इंजील के मुताबिक लोग जो हैं वो उसके पीछे चलते थे, वो अपने खानदान को छोड़कर उसके पीछे चलते थे। यीशु की जो शख्सियत थी, उसकी जो बातें थी, वो जो काम करता था, वो अमेजिंग थे और लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे मेरे अजीजों। उसकी जो फोर्स और कुव्वत है वो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में मरकज की इंजील में चंद बातें, और वो खुसूसन जब यीशु ने उस एक आदमी जिसके अंदर बुरी रूह थी, जब उस बुरी रूह को निकाला, तो कलाम मुकद्दस में मरकज ने लिखा है कि वो घर छोड़कर उसके पीछे चलते थे, और उसमें एक कुव्वत थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी मेरे अजीजों। लोग उसकी तालीम को लिखा है कि सुनते थे और हैरान होते थे और वो दूसरों को बताते थे। अब बात आ जाती है शेयर करने की, जिस तरह मैं और आप आज शेयर करते हैं, इसी तरह वो लोग जो थे वो यीशु के मौजों के बारे में दूसरों को बताते थे और शेयर करते थे, और इस तरह जो फॉलोअर थे उनकी तादाद जो थी बढ़ती जाती थी। एक कुव्वत थी जो दूसरों को भी यीशु की तरफ खींच लाती थी। हम कलाम मुकद्दस में मरकज की इंजील में पढ़ते हैं कि किस तरह उसके दूसरे बाब में यह वाकया लिखा है कि 4 दोस्त थे और उनका 5वां दोस्त बीमार था, और ये 4 जो दोस्त थे
ان کے اندر ایمان کی جو فورس تھی، جو پاور تھی، وہ یسوع کی طرف ان کو کھینچ رہی تھی، کیونکہ وہی ایمان کی جو قوت ہے، ایمان کا منبع ہے، وہ فورس انہیں کھینچ رہی تھی میرے عزیزو۔ اور وہ گھر جہاں پر اس وقت یسوع تعلیم دے رہا تھا، یسوع بول رہا تھا، چاروں طرف سے ہجوم کے ساتھ بھرا تھا۔ لوگ دروازے، کھڑکیاں ان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 4 دوست جو تھے وہ اپنے 5ویں دوست کو یسوع کے پاس اندر نہ لا سکے، لیکن ان کے اندر ایک قوت تھی، ایک فورس تھی جو اندر تھی، یعنی کہ یسوع جو انہیں کھینچ رہا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ اس قوت کی طرف، وہ اس طاقت کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ ان کا جو ایمان تھا، جو ایمان کی طاقت تھی، فورس تھی، وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ جس طرح بھی ہو ہم نے اپنے دوست کو یسوع کے سامنے لے کے جانا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو۔ ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں، دروازے کے رستے آنا مشکل تھا، کھڑکیوں میں سے آنا مشکل تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چھت کو کھولا۔ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کہ گھر کے جو مکین ہے وہ کیا کہیں گے، گھر کا جو مالک ہے وہ کیا کہے گا، کیونکہ وہ جو قوت اور فورس ایمان کی انہیں کھینچ رہی تھی وہ اس سے زیادہ پاورفل تھی کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ جو پراپرٹی ہے اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے۔ میرے عزیزو، وہ فورس یسوع انہیں مجبور کر دیتی ہے، وہ طاقت، اور وہ یسوع کے سامنے اس اپنے دوست کو لے کے آتے ہیں، اور پھر رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ جب یسوع کی طاقت، اس کی جو میگنیٹک فورس ہے، اسپرچل فورس، وہ ہمیں کھینچتی ہے میرے عزیزو، تو ہمیشہ رزلٹ اچھے ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز نے کس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا باعث ہے کہ یسوع کی جو طاقت اور فورس ہے وہ ہمیں اپنی طرف کس طرح کھینچتی ہے۔ اور پھر مرکز اس کو بیان کرتے ہوئے، 4 دوستوں کی بات، ان کے ایمان کو بیان کرتے ہوئے، اس مریض کے ایمان کو بیان کرتے ہوئے، وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب ہم ایمان کی جو فورس ہے اس کے سار میں ہوتے ہیں میرے عزیزو، تو ہم یسوع کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، کیونکہ ایمان اس پر ہے، اور وہی ایمان کا منبع ہے، وہ ایمان جو ہے پیدا کرتا ہے، اور اسی سے ایمان صادر ہوتا ہے میرے عزیزو۔ بالکل اسی طرح جس طرح مقناطیس لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح یسوع کی جو پاور ہے، جو قوت ہے، وہ انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے میرے عزیزو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ شفا پاتا ہے، اور اب پھر لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص چرپائی پر دوستوں کی مدد سے یسوع کے سامنے لایا گیا، اور یسوع نے اسے شفا دی، اور انہوں نے شیئر کیا، اور اس کی جو شہرت ہے اور پھیل گئی، اور لوگ جو ہیں اس کے فالوور ہو گئے، اس کے ساتھ، اس کے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ میرے عزیزو، آپ کلام مقدس کو اگر کھولیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور بات پڑھنے کو ملتی ہے جو مرکز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ واقعہ ہے اس عورت کا جس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا۔ اور کلام مقدس میں ہم یہ جو واقعہ ہے یہ مرکز کی انجیل کے 5ویں باب کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہاں بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس کو یہ بیماری تھی، اور اس کے بارے میں ہم نے ساری یہ جو بات ہے، جو واقعہ اس کے بارے میں پہلے پڑھا ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر بات کرتے ہیں میرے عزیزو۔ وہ جو عورت ہے وہ اس وقت بڑی ہی پریشان ہے، بڑی ہی اداس ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے لیے اس نے بہت علاج کروایا، ڈاکٹروں کو پیسے دیے، حکیموں کے پاس گئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی رام نہیں اسے ملا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ میں کس طرح
यीशु के पास जाऊं, क्योंकि शरीयत कहती है जिसको इस तरह की बीमारी है वो खुद भी नापाक है, अगर वो किसी को छुएगा तो नापाक हो जाएगा। शरीयत की जो रसूम है उनमें वो जकड़ी हुई है, समाजी जो रसूम है उनमें वो बंधी हुई है, कोई आजादी नहीं। मेरा क्या होगा? क्या मुझे शफा मिलेगी? क्या मेरा इलाज होगा? मैंने पैसे डॉक्टरों को दिए हैं, मैं कर्जे में आ चुकी हूं, मेरी ये बीमारी जो है इसका कोई इलाज नहीं कर सका। आज यीशु को मैं देख रही हूं, आज मेरा दिन है, आज यीशु मुझे शिफा देगा, लेकिन मैं किस तरह यीशु के पास जाऊं? क्योंकि अगर मैं उसको छूती हूं तो मैं अपने साथ उसको भी नापाक करूंगी। और लोग क्या कहेंगे? शरीयत के मानने वाले, शरीयत के बारे में गैरत रखने वाले, हो सकता है मुझे पत्थरों के साथ संसार कर दें, हो सकता है मुझे बिल्कुल शहर से निकाल दिया जाए। अभी तो मैं सिर्फ हैकल की हाजिरी से बाहर हूं, अभी तो मैं सिर्फ खानदान से दूर हूं, लेकिन मेरे साथ क्या होगा अगर मैं उस हजूम में जाती हूं? अगर लोग मुझे पहचान लेंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन मैं क्या करूं? आज मुझे शफा पानी है, आज मुझे यीशु को बताना है कि मुझे इस बीमारी से वो शिफा दे। और फिर मैं अपने सर पर चद्दर ओढ़कर खामोशी के साथ जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि बड़ी खामोशी से यीशु की जो पोशाक है उसे छू लूं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं खामोशी से बाहर आ जाऊंगी। और मेरे अजीजों, यही सोचती हुई वो हजूम की सफों को काटती हुई आगे बढ़ती है। दिल में खौफ भी है, कोई पहचान न ले, डर भी है, कोई पहचान न ले, लेकिन यीशु आगे बढ़ रहा है, उसके साथ लोग हैं, आगे भी लोग, पीछे दाएं बाएं हर तरफ एक जुम्मे गफीर है, एक हजूम है जो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। और मेरे अजीजों, कौन सी ऐसी ताकत है जो उसको यीशु की तरफ खींच रही है और वो यीशु की तरफ बढ़ती जा रही है? वो यीशु की वो फोर्स है, उसकी शख्सियत है, उसकी बातें हैं, उससे जो कुव्वत निकलती है वो उसको खींच रही है और वो खींचती चली जा रही है। आज वो बिल्कुल ये नहीं सोचती कि उसके साथ क्या होगा। आज वो सारी जो शरीयत की रस्में हैं, सारी जो समाजी रसूम है, समाज का जो डर खौफ है, उसको छोड़कर वो आगे बढ़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु के साथ चलने के लिए, क्या यीशु की तरफ खींचे आने के लिए, क्या यीशु के साथ रिलेशन कायम करने के लिए आप समाज की, सोसाइटी की, आप शरीयत की या किसी और ऐसी रस्मों में तो नहीं, कोई ऐसा खौफ तो नहीं, कोई ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं, कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं जो आपको यीशु की तरफ खींचे जाने से रोक रहा है? मेरे से उसने बिल्कुल गौर नहीं किया। वो जो औरत बीमार थी वो यीशु की तरफ बढ़ती गई और बड़ी खामोशी के साथ उसने यीशु की पोशाक को छुआ और बड़ी परेशान हुई और बहुत घबराई, क्योंकि कोई दोस्त नहीं, कोई उसके साथ नहीं जो उसको शायद कोई मसला हो तो उससे बचाए। बड़ी अकेली, परेशान, बीमारी में यीशु की पोशाक को छूती है और इस फिक्र में है कि अब लोगों को पता चल जाएगा, लोग मुझे हो सकता है संसार करें, हो सकता है यीशु मुझे झिड़क दे। लेकिन एक आवाज आती है, मेरे अजीजों, किसने मेरी पोशाक को छुआ? और फिर हम कहानी में पढ़ते हैं कि डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई यीशु के सामने आकर अपनी सारी दास्तान बयान करती है और उसने कहा, सलामती से जा। मेरे अजीजों, जब हम दुनिया का सारा खौफ, डर छोड़कर यीशु की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ आएंगे, उसके हिसार में आ जाएंगे, तो रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। मेरे अजीजों, आपने देखा किस तरह उस औरत ने कोई परवाह नहीं की शरीयत की और ना समाज की रस्मों की, बल्कि यीशु की तरफ खींची जा रही थी और आखिरी वक्त तक उसने हिम्मत नहीं हारी। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी यीशु की जो फोर्स है उसकी तरफ बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन जो मैग्नेटिक फोर्स थी मसीहा की, वो उस औरत को खींच रही थी और वो उसकी तरफ खींचती चली गई और शफा पाई उसने, घबराई नहीं। मेरे अजीजों, और ये जो आवाज है उसको कितनी अच्छी लगी होगी, किसने मेरी पोशाक छुई, और सामने आती और अपनी सारी कहानी बताती है।
मैं आपको बताना चाहता हूं 3 साल के अरसा में उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को उसने चलता किया, मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया। लोग उसकी जो फोर्स थी उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। और आज ये 2010 के सर्वे के मुताबिक 2.2 बिलियन लोग हैं जो यीशु को फॉलो करते हैं, और दुनिया में मसीहियत की तादाद के मानने वाले दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके जो मानने वाले उनसे ज्यादा है। और एक जो नया सर्वे आया है जो 2020 में हुआ था, उसके मुताबिक जो तादाद है 2050 तक वो बढ़ती जाएगी। लिहाजा अगर कोई आपको दिल उदास करने वाली खबर बताए तो वो गलत है, उसकी तरफ ध्यान मत दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह मकनातीस लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह यीशु इंसानों को अपनी तरफ खींचता है। उसकी जो पावर, उसके अंदर जो फोर्स है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हमने यूहन्ना 2:12 में अभी पढ़ा है, यूहन्ना के 12वें बाब की 32वीं आयत में, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था शुरू में, जो हमारा आज का पैसेज है, वहां लिखा है, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये जो लफ्ज खींचना है, या इंग्लिश में इसे लिखा है लिफ्ट अप, ये 2 मानों में इस्तेमाल हुआ है मेरे अजीजों। एक तो जमीन, लिटरली जो जमीन है उससे ऊपर उठाया जाना, क्योंकि यीशु को सलीब दी गई, और दूसरा इसका मतलब है उसे एग्जॉल्ट किया गया, उसे जलाल बख्शा गया, उसे जो उसका ओहदा या रैंक है उसमें आगे उसे किया गया। 2 मानों में इसे इस्तेमाल किया है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो रखना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में एक प्लेट है और इसमें मल्च है। ये आप रेत या जो मट्टी है उसे आप कह सकते हो, और ये काले रंग की है, ये सारा ब्लैक है। और मेरे हाथ में ये मैग्नेट है, और आप अगर देख सके, मैं दिखाता हूं आपको, ये सिर्फ जो मल्च है, ब्लैक मट्टी या रेत, यही नजर आएगी। और अब मेरे हाथ में ये मैग्नेट है जो मैं इसके ऐसे करता हूं, और आप देखें कि किस तरह ये कील हैं जो इसके साथ चिपक गए हैं। ये कील जो है ये इसके साथ चिपक गए हैं, लेकिन जो मल्च है वो वहीं की वही है, यानी कि जो मट्टी या रेत है, ये जो ब्लैक कलर की, ये वहीं की वही है, लेकिन जो कील है वो इसके साथ चिपक गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मकनातीस है उसके अंदर जो फोर्स है, अनदेखी फोर्स, देख नहीं सकते, जो कील है वो उसी धात के हैं, लोहे के, और उन्होंने उसको रिस्पांस दिया, मैग्नेट को रिस्पांस दिया, और वो उसकी तरफ खींचे गए। लेकिन जो धात है, जो मट्टी है, या जो रेत है, वो वहीं की वहीं रही, और जो लोहे की चीजें थी वो उठा ली गई। मट्टी वहीं रह गई है, जो लोहे की चीजें थी वो उठा ली गई। वो जो कुव्वत और पावर है उसकी तरफ, जो यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। मेरे अजीजों, जो यीशु की मैग्नेटिक फोर्स है वो इंसानों को अपनी तरफ खींचती है, और जिनके पास बेटा है, जो इस फोर्स को रिस्पांस करते हैं, कील जो थे उन्होंने रिस्पांस दिया, और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह ये कील इस मैग्नेट के साथ चिपके हुए हैं, और जो मट्टी है वो नीचे पड़ी हुई है। बिल्कुल इसी तरह जब मैंने शुरू में आपको दिखाया तो आपको कील नजर नहीं आए। मैं और आप भी दुनिया में इसी तरह हैं, दूसरे इंसानों की तरह नजर आते हैं। हमारी शक्ल, कान, नाक, जो हमारी बॉडी है दूसरों की तरह है, लेकिन हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। हम सलीब की तरफ खींचे चले जाते हैं, सलीब को सब देखते हैं, लेकिन जो ईमानदार है, जो उस फोर्स को, सलीब को समझते हैं, उसकी जो उसकी हैसियत है, सलीब हम उनके लिए क्या है, उस वजह से वो सलीब को अपनी निजात का निशान समझते हैं, क्योंकि इस पर यीशु ने अपनी जान दी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं
वो भी स्लीप को देखते हैं, लेकिन उनके नजदीक ये कोई मानी और हैसियत नहीं रखती। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, यीशु की जो फोर्स है वो उन इंसानों को चुन लेती है जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उस फोर्स को जवाब देते हैं। जिस तरह कीलों ने रिस्पांस दिया मैग्नेट को, उसी तरह मेरे अजीजों जब मैं और आप इंसान, जब उसकी जो फोर्स और ताकत है, जब उसको हम जवाब देते हैं, तो जिस तरह ये कील मैग्नेट के साथ है, उसी तरह मैं और आप फिर यीशु के साथ ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह ये मट्टी वैसी की वैसी ही रही, इसी तरह वो लोग जो यीशु की जो कुव्वत है उसको रिस्पांस नहीं देते, जवाब नहीं देते, वो बिल्कुल इस मट्टी की तरह है, वो वहीं पे रहेंगे। लेकिन मैं और आप उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो एहसार है, उसमें जब आ जाते हैं तो हम बचाए जाते हैं मेरे अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि खुदावन के जिंदा कलाम में अभी जो बात यूहन्ना रसूल ने यहां पर लिखी, उसका मतलब यही है कि जब वो ऊंचे पे खींचा गया तो उसने हमें अपनी तरफ खींच लिया, ताकि जो हैसियत और जो मकाम उसको दिया, वो ही मकाम वो फिर हमें देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे लिए मकान तैयार करे, क्योंकि जहां वो है वहीं पे हम रहेंगे। ये जो कील है, जब तक मैं इन्हें खींचकर हटाता नहीं, इसके साथ चिपके रहेंगे, लेकिन एक और फोर्स जो है वो उनको उठाएगी। बिल्कुल इसी तरह आज इस जिंदगी में ऐसी कुव्वतें हैं जो मुझे और आपको यीशु की जो फोर्स है उससे लैदा करना चाहते हैं। बहुत दफा ये जो कुव्वतें हैं, बहुत दफा ये जो दूसरी एंटी क्राइस्ट फोर्सेस हैं, वो हमारे इर्द गिर्द है मेरे अजीजों। हमें सिर्फ इसको देखना है, जिस तरह इन कीलों ने इस मकनातीस को जवाब दिया, रिस्पांस दिया, उसकी तरफ खींचे गए, इसी तरह मैंने और आपने यीशु को रिस्पांस देना है और उन फोर्सेस का ध्यान रखना है जो मेरे और यीशु के दरमियान में रुकावट डालती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो ऊंचे पे खींचा गया तो वो मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए आसमानी मकामों में लेके जाएगा। अभी मैंने आपके सामने दो बातें कही थी, और वो ये थी कि जब यीशु के साथ लोगों ने उसकी बातें सुनी, उसके साथ चलते थे, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। गौर से सुने, इसको बंद करने लगे हम इस मैसेज को। लेकिन जब पाम संडे वाले दिन या उसके चंद दिन बाद उनकी मर्जी के नताज ना निकले, तो उनमें से बहुत से थे जिन्होंने अनफॉलो का बटन जो है वो दबा दिया, क्योंकि वो इस बात से खुश ना हुए। वो सारे जो यीशु को फॉलो करते थे, गौर से मेरी बात सुने, वो जो फॉलो करते थे उन्होंने अनफॉलो का बटन दबा दिया, क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक वो नहीं हुआ जो चाहते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कहीं जिंदगी में मैंने और आपने जो फॉलो का बटन दबाया था, यीशु के साथ जो रिलेशन कायम किया था, उसकी जो कुव्वत है उसकी तरफ हम खींचे गए, उसके साथ चले, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसकी वजह से मैंने और आपने अनफॉलो का बटन दबा दिया हो। बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कोई बच्चा बीमार हो, बहुत दुआएं की हैं, बहुत इलाज किए हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को पैसा दिया है, हकीमों को पैसा दिया है, और बच्चे को शिफा नहीं, बीवी को शिफा नहीं, या खामद को शिफा नहीं। लेकिन मैंने अभी आपके सामने मरकज की इंजील में से अपने लिए और आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा नमूना जो है उसको प्रेजेंट किया है। उस औरत के साथ भी यही था, लेकिन वो यीशु की तरफ खींची गई, ईमान में मजबूत रही और उसके हिसार में आ गई और शिफा पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने दुआ की है और दुआ का जवाब अभी तक नहीं आया, किसी दोस्त ने, किसी खानदान के फर्द ने, चर्च में किसी हो सकता है पैस्टर ने, लेमैन ने, किसी ने भी कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से अगर कोई चर्च जाने से रुक गया है, तो मैं आपको बताता हूं, बेसिकली आपने यीशु को अनफॉलो किया है। अपने अनफॉलो के बटन को दोबारा फॉलो का बटन जो है उसको दबाकर उसके साथ जुड़े और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी उसमें आ जाए।
जरूर है कि मैं और आप फॉलो का बटन जो है उसको इंडेफिनेट दबा दें, हमेशा के लिए यीशु को फॉलो करें, क्योंकि जरूर है कि हम उसको फॉलो करते रहें। अनफॉलो का जो बटन है मेरे जीजो, उसको बंद कर दें अगर किसी भी वजह से आपने अनफॉलो का बटन जो है दबाया है। लेकिन उस दिन उसके जो शागिर्द थे उन्होंने भी अनफॉलो का बटन दबा दिया था। लेकिन क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आज 2.2 बिलियन के करीब लोग यीशु पर ईमान रखते हैं? आप जानते हैं उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, उन सब ने यीशु को अनफॉलो कर दिया था, लेकिन एक वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा यीशु को फॉलो किया और इतना ज्यादा फॉलो किया कि अपनी जानें भी कुर्बान कर दी उसके लिए। वो था यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना, कब्र पर मौत पर फतह पाना। उस वजह से उनकी जिंदगियां बदल गई और उनकी जिंदगियों में ताजगी और खुशी आ गई। और उसने ना सिर्फ उनसे बातें की बल्कि उसके अलावा बहुत सारे लोगों को वो नजर आया। और क्या हुआ फिर? गौर से सुने, फिर उन्होंने दोबारा शेयर करना शुरू कर दिया। लेट्स शेयर दिस गुड न्यूज दैट जीसस हैज रिजन, लेट्स फॉलो हिम। आओ उसके पीछे चले, यीशु फिल हकीकत जिंदा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने इस बटन को दबाया तो वो दिन और आज का दिन हजारों लाखों बिलियंस के करीब लोग यीशु को आज फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब यीशु की जो कुव्वत है, उसकी जो पावर और फोर्स है, उसमें वो आ चुके हैं। आज भी उसी तरह मौजे होते हैं मेरे अजीजों, आज भी उसी तरह ही लोग यीशु को छोड़ते हैं क्योंकि उनकी मर्जी के नताइज नहीं निकलते। आर यू pushing that button that says follow Jesus or you have unfollowed him? ये फैसला है जो मैंने और आपने आज करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद था और मैंने इसके लिए खास दुआ की थी कि खुदावन ये जो मकनातीसी कुव्वत है इसके बारे में रूहानी पैगाम जो है वो मुझे दे। और खुदावन का शुक्र है कि आज मैं और आप उसके जिंदा कलाम में उसकी जो मकनातीसी कुव्वत है, यानी कि उसकी जो पावर और अथॉरिटी है, उसके साथ मैं और आप बिल्कुल इस मैग्नेट के साथ जो कील है उनकी तरह मैं और आप जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने रूहानी सेल फोन पे फॉलो जीसस फॉर एवर का जो बटन है उसको दबा दें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन मुझे और आपको बरकत दे कि हम दुनिया की किसी भी चीज से, किसी रिश्ते से, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि हमेशा हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहें। और जिस तरह उसको स्लीप पर खींचा गया उसी तरह मैं और आप भी अपनी अपनी स्लीप उठाए उसके पीछे चलते हैं। काश खुदावन मुझे और आपको यही तौफीक बख्शे कि हम हमेशा उसके एहसार में रहें। गॉड ब्लेस यू। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन तेरा शुक्र है आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। आए खुदावन स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है, काश हम उसी फील्ड के अंदर रहें। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए कि बाप तूने स्लीप पर जान दे दी और उस स्लीप की वजह से जिस पर तू लटकाया गया, आज खुदावन दुनिया जहान में लोग हर रोज एक बड़ी तादाद में स्लीप के पास आ रहे हैं। ये तेरा फजल, ये तेरा करम है। मैं खास दुआ करता हूं खुदावन पूरी दुनिया में लेस लर्न मिनिस्ट्रीज और न्यू कवनेंट चर्च के सारे मेंबर्स के लिए, सारे फॉलोअर्स की जो मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री को फॉलो करना यीशु को फॉलो करना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदावन कि तू हमें तौफीक दे कि हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ तेरे कलाम को तेरे लोगों तक लेते जाए। आए खुदावन वो जिन्होंने अभी तक फॉलो जीसस का बटन नहीं दबाया, तो उनको तौफीक दे कि वो भी इस बटन को दबाएं, ताकि खुदावन उनकी रूहानी जिंदगी में तरक्की हो, उनके खानदानों में बरकत आए और खुदावन हम फख्र के साथ, प्राइड के साथ तेरे जिंदा होने को, तेरे नजात दहिंदा होने की खुशखबरी को दूसरों के साथ शेयर करें। आए खुदावन तू जो दुआओं को सुनता है, हमारी सर्च को सुन और इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में खुदावन बहुत सारा फल जो है वो तेरे लिए हो।
यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेसनर मिनिस्ट्री की पूरी टीम, लेसनर मिनिस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में पास्टर पतरस गिल, उनकी तरफ से अपने बिहाफ पर, और हर एक जो मेंबर है जो किसी भी कैपेसिटी में इस मिनिस्ट्री में शामिल है, उन सब की तरफ से आप सबका शुक्र करता हूं, आपका शुक्रिया, और आपके शुक्रगुजार हैं हम कि आप किस तरह बड़ी बाकायदगी के साथ हमें इनकरेजमेंट के जो मैसेजेस हैं वो पे हमारे लिए आप दुआ करते हैं। इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और खुदावन के फजल से हम दोबारा उसकी मर्जी से बहुत जल्द हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि ये जो त्योहार आ रहा है इसके बाद जो अगला त्योहार होगा उस दिन हम जो पहला सबक है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि टाइम हमेशा याद रखें। हर एतवार को सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8 बजे हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं, और फिर जो सेम इबादत और मैसेज है वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात को 11:30 बजे न्यू कवेनेंट चर्च के प्लेटफॉर्म से ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका से आप लाइव देख सकते हैं और हमारे साथ इबादत में शामिल हो सकते हैं। खुदावन आपको और आपके खानदानों को बहुत बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। और खुदावन की मर्जी से बहुत जल्द उसके जिंदा कलाम में से आपके लिए और जो सबक आमोज बातें हैं जो मुझे और आपको रूहानी तौर पर फायदा देती हैं वो लेकर आपके हुजूर आएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।